Surely. Welcome to the fourth episode of E-Chopal. It's a concept by Noble Private Limited where you tell us your stories, your mind handling problems, and we try to solve them with our mind handling solutions. So today we have with us Sir Shayan Bhatt, aka Shandy. He's known for his dedication and hard work. Welcome, sir. Thank you so much. And we have with us Ms. Devya Mahajan ma'am, founder and director of Noble Private Limited. She has been working with corporate sectors for mind handling solution problems and trying to help them with their corporate settings and all. Welcome, ma'am. Thank you so much, Riya. Thank you. And about Noble Private Limited, वो तो हमें पता ही है पहले से कि they have been taking assignments from corporate sectors and helping them grow their business. And about our E-Chopal live series, इसमें क्या होता है? We get entries from all over India with respective mind handling problems, and with guests we try to give them a practical solution, effective solution on how to handle it. So आज कुछ इस तरह है. It says, "Hi, I was looking forward to gain some insights on how to deal with crippling anxiety. A few months back, due to the current pandemic situation, I lost my job, which was the beginning of an anxious thought loop. My father is currently in isolation because he tested positive. I help my mom with house chores and preparing the meals. We are taking all precautions necessary, but there still prevails a state of panic. I can't seem to pull myself out of this anxious thought loop. I was kind of mentally prepared for circumstances like these to come, but it's harder when they actually happen. We are sort of in a financial crunch, and that keeps me stressed out throughout the day. I tried meditation but couldn't focus for 5 minutes and still lost the motivation to carry on. Is there a way to strengthen resilience and focus? How to break free of that spiral of anxious thought?" So this is an entry for today. फिर आपके सारे जाते हैं डेडिकेशन और हार्ड वर्क, तो आपकी बात में क्रिएटिविटी और म्यूजिक, ये दो फैक्टर्स इंडिविजुअल की लाइफ में कैसे? एक्चुअली सिर्फ म्यूजिक की अगर बात नहीं करें और सिर्फ क्रिएटिविटी इन जनरल की बात करें, इट्स लाइक क्या मैं बोलूं अब, इट्स लाइक फ्लोइंग वाटर. आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो इस चीज को. यू कांट गेज इट. आपको इट कम्स एंड गोज, इट्स इन बिट्स एंड पीसेस. तो कोई भी अगर एक क्रिएटिव इंसान है, मैं नहीं कह रहा हम सब में कोई ना कोई क्रिएटिविटी होती है, बट देयर आर पीपल जिनका इंक्लिनेशन ज्यादा होता है टुवर्ड्स क्रिएटिविटी. सो इट्स नॉट अ 24/7 थिंग. देयर आर डेज व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग एट ऑल. देयर आर डेज व्हेन यू इवन ट्राई टू राइट समथिंग और डू समथिंग और नहीं होता है. इट्स समथिंग दैट कम्स फ्रॉम विद इन. और ये जितने भी आर्टिस्ट होंगे, जैसे भी आप किसी का भी इंटरव्यू पढ़ लीजिए या बात कीजिए, वो आपको ये चीज बताएंगे कि इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन फोर्स. तो म्यूजिक फॉर मी पर्सनली हैज बीन अ सेवियर. मैं हमेशा म्यूजिक पे रिलाई करता हूँ, टू इफ शायन भट्ट इज समवन who's actually a family person who likes to do simple things in life, who likes to live simply, very basic kind of life. Shayan ka alter ego is Shenbi, who's very outspoken, very out there into the people's minds, और जो बात करता है regarding stuff that is needed और जो बताना चाहिए हमें सोसाइटी को. So that Shenbi part of my life always helps me to express myself. तो क्रिएटिविटी और म्यूजिक मेरे लिए एक्सप्रेशन की तरह रहा है, क्योंकि अगर वो चीज हम अपने अंदर रहने दें, जो चीजें हमें बॉदर कर रही हैं या फिर जिन चीजों से हम इंस्पायर हो रहे हैं, अगर वो हम अपने अंदर रहने दें, देन वी विल one day we will implode. Just to avoid that, you need to express yourself, and my expression is music. Very rightly said, Shayan. Probably हम यही लोगों को बोलते हैं कि आप अपने मन में बातें तो रखते हैं, लेकिन उसको रास्ता नहीं देते. तो रास्ता दे दें तो वो एक ऐसी कला के तौर पे बाहर आएगा कि आप हैरान हो जाएंगे जो अंदर था वो किस तरीके से एक मैन्युअर में कन्वर्ट हो गया.
और आपको एक आइडेंटिटी मिली जो हर एक इंसान ढूंढता है अपनी लाइफ में। जैसे आपने अपनी आइडेंटिटी रैपिंग से बनाई, मैंने अपनी आइडेंटिटी राइटिंग से बनाई और उसको ट्रांसफॉर्म किया एक प्रोफेशन में। तो बहुत समय लगता है, टाइम लगता है और कहीं ना कहीं आपको पेशेंस की जरूरत पड़ती है। और यही आपको सिखाता है कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ रिजिलियंट हो सकते हैं। ये एक वर्ड ऐसा है आजकल बहुत चल रहा है कि रिजिलियंट हुआ करें, बर्दाश्त करें, वक्त के तकाजे के साथ चलें, लेकिन हम नहीं चलते। वक्त हमें इस बारी जो पेंडेमिक का टाइम है जबरदस्ती चला रहा है अपने हिसाब से, और कहीं ना कहीं हमें ये बता रहा है कि हमें इन चीजों से ऊपर उठना है। हम जिस स्पीड से चल रहे थे अपनी लाइफ में उस स्पीड से रुके भी, ताकि आगे बढ़ सकें, कुछ नया सीख सकें, कुछ नया कर सकें। In the first wave of COVID, I lost my mother due to COVID only. तो ये एक ऐसा पीरियड था जो कि मतलब बयान नहीं किया जा सकता, बिकॉज आई वॉज रियली क्लोज टू हर, और हर एक चीज मेरी लाइफ की उनको पता थी। एंड वो ऐसा टाइम था कि आई वॉज रियली स्ट्रगलिंग विद माई म्यूजिक, आई वॉज रियली स्ट्रगलिंग विद पुटिंग माई हार्ट आउट देयर, लोगों को बताना चाहता था कि क्या है। फिर एक ऐसा पीरियड आया उनके जाने के बाद कि मुझे लगा कि मुझे छोड़ देना चाहिए सब, बिकॉज अब शायद मुझे सीरियस हो जाना चाहिए, मेरे को मे बी एक गवर्नमेंट जॉब की तरफ करना चाहिए, अपना रुख करना चाहिए उस तरफ। लेकिन इवेंचुअली मैं नहीं कर पाया। कुछ टाइम अगर मैंने म्यूजिक को ब्रेक दिया भी, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता दे पाया। उसके बाद मैंने ना कुछ सोचा, ना दाएं ना बाएं, मैं फिर लिखने लग गया। और एक्चुअली वो प्रोसेस ने मुझे बचा लिया, क्योंकि वरना ये एक ऐसी डार्क साइड है जब आपकी लाइफ में, जैसा जो ओपनिंग क्वेश्चन था, एक ऐसी डार्क साइड है कि अगर आप मेंटल अपना बैलेंस खो के उस चीज में डूबते जाओ तो आप बहुत मुश्किल है निकलना। तो वो शुरू का ही फेज है जब आप अपने आप को रोक सकते हो, आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे क्या, मैं उस तरफ जा रहा हूँ, मुझे जाना है कि नहीं। वहां पर आप कंट्रोल कर सकते हो अपने आप को। तो म्यूजिक ने मुझे हेल्प किया उस टाइम पे। मैंने एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर दिया, अपने आप को ज्यादा बिजी रखना शुरू कर दिया, ज्यादा एक्सप्रेसिव हो गया। तो इवेंचुअली उसी चीज की वजह से मैं हूँ जहां हूँ। और ये बड़ा एक जिंदगी की एक बहुत अनूठी सी सीख है कि लाइफ इज वेरी अनसर्टन। ट्रू। तो जो भी वक्त मिला है अच्छे से निकालें, अच्छे से गुजारें और लोगों के काम आए तो बेहतर रहेगा। क्योंकि आज के टाइम में पता नहीं है किसकी लाइफ कितनी है। और एज पहले कहा जाता था बूढ़े हैं कितना समय है, लेकिन आज वो भी नहीं है। तो अपनों को अपने साथ रखते हुए आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, और अपने एक्सप्रेशंस को आगे लाना बहुत जरूरी है, ताकि एटलीस्ट जिंदगी में हम वो तो कह सकें जो हम कहना चाहते हैं। और कोई भी इंसान जो अपने इस वक्त सोच रहा है कि जिसकी जॉब चली गई हुई है, उसके पास कुछ है नहीं करने को, उसके पास वो वक्त मिला जो शायद उसको जॉब में ना मिलता। आज वो समय मिल गया कि ताकि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सके। हम अपने आप को खुद पाने के लिए क्यों नहीं तड़पते, एक ये सवाल है। तो जरूर जब ये वक्त आ रहा है तो उसको उस तरीके से उपयोग में लेके आएं, उस तरीके से आगे इस वक्त को गुजारें कि ये वक्त आपकी जिंदगी में हमेशा मेमोरेबल रहे। बिकॉज जब काम हो जाएगा आपकी लाइफ में, आपके पास जॉब है, आपके पास आप सब कुछ कर रहे हो अपनी लाइफ में, वेल डूइंग रियली वेल, देन यू वुड रियली मिस आउट दिस टाइम। मैम बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी कोई स्ट्रेस सिचुएशन आती है, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट इट, हम उसको अंदर अंदर रखना शुरू कर देते हैं, इमोशंस को बाहर नहीं आने देते कि नहीं किसी से बात नहीं, काफी टैबू सा भी हो जाता है सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में हम कैसे एक्सप्रेशन दें उन इमोशंस को, कैसे पैसेज वे दें कि वो खुल के बाहर आ सके। जो ये कैसे वर्ड है ना, कैसे करें, आपको अपने साथ वक्त गुजारना पड़ेगा, वो रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा। मेरे लिए लिखावट एक ऐसा माध्यम था जिससे मैंने अपने इमोशंस को बाहर डाला। शीन बी के लिए प्रॉब्ली रैपिंग ऐसा माध्यम था कि जिससे उन्होंने अपने इमोशंस को बाहर निकाला। आपके लिए क्या है? आप दूसरों को कॉपी मत कीजिए, आप अपना ढूंढिए। तो जब आप अपना ढूंढेंगे तो वो जो मोमेंट है जब आप कैच कर पाएंगे कि एक्चुअल में क्या है, वो ऐसी कला कौन सी है जिससे आपके इमोशंस को पाथवे मिलता है बाहर की तरफ,
तो आप आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। तो नेम और फेम तो है ही है, पब्लिसिटी तो मिलेगी ही मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी ही मिलेगी। शीन, आप क्या कहते हैं इस पे? मैं तो यही कहता हूँ कि ये अगर आप इस चीज की रूट पे जाएं तो हम बचपन से, जो मुझे लगता है कि हम बचपन से ऐसे कंडीशन किए जाते हैं कि अपने आप को एक्सप्रेस करना हमेशा सही बात नहीं होती है। यू हैव टू बी स्ट्रांग, यू हैव टू बी स्टर्न हर एक चीज को लेके। अगर आपने अपने आप को एक्सप्रेस किया तो आप कमजोर हो कहीं ना कहीं। तो ये कंडीशनिंग का रिजल्ट भी है कि बहुत सारे लोग ना खुद में रह जाते हैं, वो किसी से बात नहीं करते हैं। विद मी, माई मदर ऑलवेज यूज्ड टू टेल मी कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई बात नहीं कितनी भी बड़ी, आपको शेयर करनी है, कितना ही बुरा हो सकता है, और अंदर रखने से और बुरा होता है। तो शी वॉज वेरी फ्रेंडली। और ये एज पेरेंट्स लोगों को भी जानना चाहिए कि वो अपने बच्चों को बचपन से कंडीशन करें इस चीज को कि एक्सप्रेस करना कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि आप वन फाइन डे ये शुरू नहीं कर सकते सीधे कि यार आज मेरा दिल कर रहा है मैं सब दिल खोल के बात कर लेता हूँ। नहीं, इट टेक्स टाइम, इट्स अ प्रोसेस। और इवन इफ लेटर इन योर लाइफ यू डिसाइड कि नहीं मुझे थोड़ा एक्सप्रेसिव होने की जरूरत है बिकॉज आई एम इम्प्लोडिंग अंदर ही अंदर, तो आपको वो हल्के हल्के शुरू करना है। यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। सीधे राइट अवे आप जाओगे, मे बी आप हर्ट कर सकते हो अपने आप को, क्या पता सामने वाला नहीं समझे आपको। तो यू हैव टू ऑलवेज चेक कि आप किसको बता रहे हो, कब बता रहे हो, किस तरीके से प्रेजेंट करके बता रहे हो। तो दैट प्रोसेस इज रियली इंपॉर्टेंट। और बड़ी खूबसूरती से शीन ने बताया कि उनकी मदर ने कितनी अच्छी ग्रूमिंग अप की है उनकी, कि हर चीज अपने मन में कुछ मत रखो, हर चीज को बाहर निकालो। यही एक ऐसी चीज है जो हमें हर जगह लागू करनी है। डोंट बी जजमेंटल, एक्सप्रेस योरसेल्फ। हम जजमेंट से डरते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन जब आप एक्सप्रेस करने लगते हैं, जब आपने अपने वर्ड्स को म्यूजिक के फॉर्म में, बीट के फॉर्म में प्रेजेंट किया होगा, आई थिंक आप उससे ऊपर उठ गए, एक अलग एक्सप्रेशन आ गया। और शायद वो कई लोगों की आवाज होगी मन की, जो आपने बाहर एक रैप के तौर पे निकाल दी। तभी लोग पसंद करते हैं, तभी लोग उनको गाते हैं, राइट? तो बहुत जरूरी है कि हम जब लिखते हैं, हम जब बोलते हैं, हम जब एक्सप्रेस कर रहे हैं किसी भी क्रिएटिव फॉर्म में, तो उस वक्त ये जान के करें कि बस यही मोमेंट है और इसी में ही सब कुछ है, ताकि वो एक्सप्रेशन फुली आए बाहर। लोग अप्रिशिएट जरूर करेंगे, आपको अप्रिसिएशन जरूर मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही। सर, आपके साथ भी ऐसे कुछ मोमेंट्स आए होंगे, ऐसा कुछ सिचुएशन जहाँ आपको लगा होगा कि नहीं, एंजाइटी मुझे भी हो रही है, मेरे थॉट लूप भी मतलब डिट्रैक हो रहे हैं, उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं यूजुअली? मैं सबसे पहले ये ऐड करना चाहता हूँ कि I have battled anxiety. I did my masters from Jamia, Delhi, Jamia Millia Islamia. तो वहां पर जब इतने सालों जिंदगी के आपने 21-22 साल आप इधर रहे हो जम्मू में, आप एक फॉरेन, आपके लिए वो फॉरेन ही है, एक फॉरेन एरिया है, वहां पर कल्चर्स हैं डिफरेंट, सब कुछ। आप जाते हो, आप एंक्शियस हो जाते हो, और घर से दूर खुद चीजें जब करनी पड़ती हैं। तो उसके बाद मैं बॉम्बे गया। वो 4-5 साल मेरी जिंदगी के बहुत एंजाइटी वाले थे, बिकॉज एक तरफ मेरा सपना था कि मुझे म्यूजिक और फिल्म में एक्चुअली करना था बहुत सारी चीजें, और एक तरफ ऐसी एक वॉइड क्रिएट हो गया था लाइफ में कि घर वाले नहीं है मेरे साथ, कोई भी नहीं है आसपास। तो एंजाइटी एक ऐसी चीज है, आपके पास दो रास्ते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप उसको जड़ से खत्म कर सकते हो, और बाय द वे कोई दवाई नहीं है इस दुनिया में जो एंजाइटी का इलाज कर सके। वो दवाइयां आपको सुन कर देंगी जरूर, यू विल फील नम, बट वो उसको बिल्कुल खत्म नहीं कर सकती। आपको डिसाइड करना लाइफ में, ईदर यू कैन टेम इट और यू कैन लेट इट ओवरकम यू। वो आपके हाथ में। अब आप पूछेंगे कैसे आपके हाथ में? व्हेन यू आर नॉट फॉलोइंग योर गोल्स, तब एक वो वॉइड क्रिएट हो जाता है कि यार मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मेरी जिंदगी कहाँ जा रही है, मुझे जब डायरेक्शन लेस हो जाए इंसान लाइफ में, तब एंजाइटीज उसको खाने लग जाती है। सबसे ज्यादा जो मैंने यही नोटिस किया लाइफ में, जब आपके पास एम नहीं है, जब आप एमलेसली वॉन्डर कर रहे हो इधर उधर, तो वो एक सबसे ज्यादा ऐसा एक वीक पॉइंट होता है, एंजाइटीज आपको सबसे ज्यादा घेरती हैं। तो मेरा यही है कि चाहे छोटी सी चीज हो आपकी लाइफ में, आपको गार्डनिंग पसंद हो तो अपने आप को डेडिकेट कर दो उस चीज में, एक वो आपको जो सेटिस्फैक्शन उससे मिलेगी,
वो आपकी एंग्जाइटी को टेम करती रहेगी. देयर इज नो अदर वे. ऐसा नहीं कि आप एक दिन सुबह उठे और एंग्जाइटी गायब हो गई. नहीं, इट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस. आपको अपने आप को उस चीज के लिए रेडी करना है कि नहीं, अगर ये एंग्जाइटी मुझे हिट हो रही है, मुझे इसको काउंटर करना. काउंटर कैसे करूंगा? बाय फॉलोइंग व्हाटएवर आई लाइक. इट कैन बी एनीथिंग. छोटे से छोटी सी चीज, बड़ी से बड़ी चीज. Rightly said, Sheen. Actually, see, everyone goes through it. बच्चे छोटे होते हैं ना, जब स्कूल में जाते हैं तो उनको तब भी एंग्जाइटी होती है कि पेपर में क्या करेंगे. जब बड़े हो जाते हैं, जॉब नहीं रहती है, तब भी एंग्जाइटी होती है, अब क्या करेंगे, क्योंकि हमने कभी भी एक्सपेरिमेंट करना सीखा नहीं. हम शॉर्ट टर्म गेन देखते हैं, कुछ मिल जाए अभी के लिए ताकि हमारी गाड़ी चलती रहे. तो वो शॉर्ट टर्म गेन में वी लैंड इनटू अ प्रॉब्लम, and that problem remains with us forever our life, because we are not expressing ourselves, we are not exploring more. और यही अगर we become explorer, then life unfolds itself in a multiple way, in a most beautiful way. और वो हम एक्सप्रेशन देते नहीं है. सबसे बड़ी बात, वो देना बहुत जरूरी है, चाहे गार्डनिंग के तौर पे दें जैसे आपने कहा, या राइटिंग के तौर पे दें जैसे आप रैप करते हैं. राइट, कोई किसी भी इंसान का कोई भी एक्सप्रेशन हो, उसको बाहर आउटलेट देनी ही देनी है. और अगर इस वक्त, इस मोमेंट में आपके पास कुछ भी नहीं है, सोचो आपके पास सब कुछ है, वक्त है, और उस वक्त को एक्चुअल में यूज करें अपने लिए. बिल्कुल. मैम, एनोबलर प्राइवेट लिमिटेड के बारे में जब भी हमने बात की, एक मेंशन हुआ सिर्फ NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. काफी जो हमारे प्रोग्राम्स, बीट एंजाइटी हो गया, इनमें न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का बेसिस है पूरा. तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कैसे हेल्प कर सकती है एंजाइटी को बीट करने में? देखिए, जब हम कोई चीज सोचते हैं और ये सोचते हैं कि बस ये खत्म हो गया, तो वो एक सोच है, एक विंडो है. उस विंडो में कुछ पोर्शन होगा जिसके थ्रू हम लोग देख रहे हैं. तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक ऐसी प्रोग्रामिंग सिस्टम है, थ्रू कोचिंग, राइट काइंड ऑफ क्वेश्चनिंग, जहां से आप उस इंसान को उस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड से निकाल के एक वाइडर स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाते हैं. उसके बैरियर विद क्वेश्चनिंग तोड़ते हैं. इंस्टेड, नॉर्मली काउंसलिंग सेशंस में क्या रहता है कि हम अगले को समझाते हैं. तो NLP, जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो बेसिकली क्वेश्चन करते हैं ताकि क्लाइंट खुद जाने, खुद उस पर्टिकुलर स्टेट को ब्रेक करे, ताकि वो उस विंडो से बाहर निकल के एक वाइडर विंडो में जाए. प्रोस्पेक्टिव्स तो है ही हैं, अपॉर्चुनिटीज तो है ही हैं, सिर्फ हमें नजर नहीं आ रही है, तो वो नजरिया खुल जाता है वहां पर. तो NLP इज द मोस्ट इफेक्टिव टूल इन प्रेजेंट टाइम. जिस तरीके से हम प्रोग्राम करते हैं कंप्यूटर को, उस तरीके से हम ब्रेन को भी प्रोग्राम कर सकते हैं, रीप्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं. और बहुत जरूरी है, ताकि हम देखिए, पैल्पिटेशन जब हो रही है तो कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस के साथ एसोसिएटेड है. तो जो थॉट प्रोसेस है, अगर उसको करेक्ट किया जाए तो पैल्पिटेशन भी रुक जाएगी, हार्ट बीट नॉर्मलाइज हो जाएगी. आपको ये बिलीव होगा कि आप कर सकते हैं, आप में पोटेंशियल है. तो इफ यू करेक्ट दिस थिंग, हार्ट विल बी परफेक्टली ऑलराइट. सो दिस इज व्हाट NLP does, and we people as enabler coaches take care of that for every client who comes to us. सर, आपका कोई मैसेज आपका ऑडियंस के लिए? मेरा मैसेज हमेशा की तरह यही रहता है कि I have always been, anti-bullying, anti कुछ भी आप कह रहे हो, which is against, जो हमें फ्री विल पे काम नहीं करने देता है. तो if people really खुश कैसे रहा जाए जिंदगी में, मैं ऐसा नहीं है, मैं आज तक, हम सब कहीं ना कहीं हम स्ट्रगल कर रहे हैं. एट द एंड ऑफ द डे खुशी गोल होता है सब लोगों का. जरिया पैसा हो सकता है, जरिया सपने हो सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे सबको पीस चाहिए, सुकून चाहिए, सबको खुशी चाहिए जिंदगी में. वो कैसे आएगी जिंदगी में? वो तभी होगी जब आप अपनी दिल की बात मानेंगे. डजंट मैटर कितना टाइम लगता है, और डजंट मैटर कितना आपको बुरा वक्त देखना पड़ता है, बट वही कहते हैं ना कि जर्नी अगर उबड़ खाबड़ नहीं रहे, तो फिर जब आप जहां पहुंचोगे वहां पहुंचने में मजा क्या है?
जब आपके पास कोई स्टोरी नहीं होगी बताने को। कल को जब आप कहीं पहुंच जाओगे और आप बताओगे कि मैं यहाँ से निकला हूँ, तब आप रियलाइज करोगे वाह मैंने इतना कुछ देखा है जिंदगी में, मतलब मैं काफी दूर आ चुका हूँ जिंदगी में। तो मैं सबको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्रिएटिव जितने भी प्रोफेशंस हैं, जैसे एक रैपर का, एक सिंगर का, एक आर्टिस्ट का है, उस तरफ तवज्जो भी दें। उनको कभी लुक डाउन नहीं करें अपनी जिंदगी में कि ये ऐसे ही है, ये बस टाइम पास है, ये बस एक सेकेंडरी ऑप्शन है। बिकॉज बहुत सारे लोगों को इस चीज ने बचाया है। अगर वो आपकी जिंदगी बचा सकता है तो वो बस ऐसे ही नहीं हो सकता, वो बस टाइम पास नहीं हो सकता है। सो इस चीज को आप एटलीस्ट, मैं इसी चीज के लिए काम करूंगा, इस थॉट के लिए काम करूंगा कि हमें एक्चुअली उनको एट पार लाना है। बाकी प्रोफेशंस की इज्जत करता हूं मैं, लेकिन हमारी लीग की भी इज्जत होनी चाहिए उतनी। तो वो उस चीज के लिए मैं हमेशा जो है वोकल होता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। और मैं सबको यही बोलूंगा कि वो भी लड़े इस चीज के लिए, और इन अ वेरी पीसफुल वे अपने आप को एक्सप्रेस करते रहें। इट कैन बी एनीथिंग, छोटे से छोटी चीज या बड़े से बड़ी चीज। थैंक यू। शीन, यहाँ पर मैं एक जस्ट पॉइंट ऐड करूंगी। लड़ाई तो चलो ठीक है, बट जब आप एक अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं और स्टेज पे एक बढ़िया सा रैप लेके आते हैं, लोग अप्रिशिएट करते ही करते हैं, तो रिस्पेक्ट वहां पर खुद ब खुद ही आ जाती है। तो लोग जानेंगे कि रैपर्स आर नॉट दैट काइंड ऑफ पीपल, दे आर रिस्पेक्टेड पीपल एंड दे आर पीपल हु हैव टैलेंट। ट्रू ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। तो कोई रैप हो जाए मेंटल हेल्थ के ऊपर, आप कोई अगर छोटा सा क्लिपेट अपना, एनीथिंग। एक्चुअली एक ट्रैक था जो अभी मैंने रिलीज नहीं किया है, वो इन कमिंग मंथ्स में मे बी रिलीज होगा। इट इज ऑल बेस्ड ऑन मेंटल हेल्थ, कि कैसे जो है हम अपने आप से आजाद नहीं, और कैसे हमारी थॉट्स ने हमें हमेशा केज करके रखा है कि हम अपने आप से बेटर हो ही नहीं सकते। तो वो उस चीज पे बेस्ड था ट्रैक, और मुझे बस रिवाइंड करना पड़ेगा अपने माइंड में कैसा है, क्या है वो ट्रैक। The song is called आजादी। खड़ा तूफान में उफान पे जहान मेरा, कोशिशों की है मजार ये मकान मेरा, जो चीखती दीवारें सुनता ये जहान, जख्म दिखते ना जहन के ठहरा वो ही इम्तिहान मेरा। खौफ से हूँ निकला खौफ को है जाना, खौफ ने तो छीनी नींद ख्वाब छीनता जमाना, आना जाना हमको बताना, ये सब है करता और बोलता जमाना। थैंक यू। वंडरफुल वंडरफुल। मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, इट इज नॉट रिलीज्ड येट, बट a few lines. No worries. We liked it a lot and we are eagerly waiting for it. Thank you Eagerly so much. Thank you so much. Anything you would like to share? Just stay happy, express yourself. Don't think that you have lost everything in your life. There are wider opportunities which are on their way. Explore more and you will find your path. That's it. Amazing, amazing. So that's it for today, guys. Thank you, sir. आप यहाँ पे आए अपना valuable time निकाल के. Thank you so much. I Thank hope you so much. Thank you, thank you. Thank you, Sheen, and we are privileged today to have you. Same here. Likewise. Always. Take Thank you. Bye. Take care. Bye.